Good evening, all of you. Today we continue the topic virus. As we all know that we have completed bacteriophage, structure, mode of infection. Today we will continue the topic viruses. We will continue the topic viruses, and in viruses we deal with TMV. TMV, that is tobacco mosaic viruses. Tobacco mosaic viruses. Okay. Now, it was discovered by Russian worker Ivanovsky. D. Ivanovsky was discovering tobacco mosaic virus, and Franklin described the ultrastructure of TMV. ठीक है? So इसको डिस्कवर कौन किया था? Tobacco mosaic viruses was discovered by a Russian worker. क्या नाम था इनका? डी Ivanovsky. Okay, and Franklin et al. एटल का मतलब होता है अदर वर्कर्स हु कंट्रीब्यूटेड इन दिस वर्क. फ्रैंकलिन एटल 1957 described the ultrastructure of tobacco mosaic virus. Described the ultra structure of tobacco mosaic virus. So TMV was discovered by D. Ivanovsky, and Franklin et al. Described the ultrastructure of tobacco mosaic virus. Next, this tobacco mosaic virus is a rod-shaped virus, and in its core, okay, the core contain a infectious single-stranded RNA. It is a rod-shaped virus. Rod-shaped virus. The rod has a core. इस रॉड के सेंटर में कोर होता है, which contain helically coiled single-stranded RNA. Helically coiled single-stranded RNA. Now, there is a protective covering called capsid, which is made up of protein. So we can write there is a protective proteinaceous covering. Protective proteinaceous covering called, what it is called? Capsid. Called capsid, which around the infective part. Now, this capsid consists of 2133 subunits called capsomere. Okay, capsid consists
of 2130 subunits of capsomer. ठीक है, तो capsid is a polymer and capsomer is a monomer and has a antigenic property, and this has a antigenic property. Antigenic property. Okay, now this tobacco mosaic virus causes mosaic disease to a tobacco leaves and some other plants. TMV causes mosaic disease to tobacco leaves and some other plants as well. अब जब यहाँ पे बार बार लिख रहे हैं कि मोजाइक डिजीज कॉज कर रहा है, तो व्हाट आर द सिम्टम्स बाय विच वी कैन से दैट टोबैको प्लांट इज सफरिंग फ्रॉम मोजाइक डिजीज? क्या होगा? देयर इज अ लॉस ऑफ क्लोरोफिल, इसको बोलते हैं क्लोरोसिस. देयर इज अ लॉस ऑफ क्लोरोफिल फ्रॉम द लीफ. Loss of chlorophyll from the leaves, especially young leaves. तो क्या होगा? Later on non green, later on उसी पत्ते में जहां जहां पे क्लोरोसिस होगा वो नॉन ग्रीन हो जाएगा, जिस पार्ट में क्लोरोसिस नहीं होगा वो ग्रीन होगा, तो पूरे पत्ते में नॉन ग्रीन और ग्रीन पैचेस होगा. Later on non green and green patches, non-green and green patches are found in mature leaves. Later on non-green and green patches कहां पे पा गया? mature leaves में. green leaves जो है, green area जो है, green part, वो थिकनेस में ग्रो करेगा एंड गिव ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस. ग्रीन एरियाज ग्रो इन थिकनेस, इसमें थोड़ा मोटापन आएगा एंड गिव ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस. ठीक है, तो ग्रीन एरिया जो है दे आर ग्रोइंग इन थिकनेस एंड गिव ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस. और एक चीज याद रखना कि जिसमें टोबैको मोजाइक वायरस, जिसमें इस टीएमवी वायरस का अटैक होता है, द लीव्स शो कर्लिंग एंड डिटोरिएशन. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम्स सफरिंग फ्रॉम मोजाइक डिजीज. दोज लीव्स विच सफरिंग फ्रॉम मोजाइक डिजीज दे ऑल्सो शो कर्लिंग, लीफ जो है वो घूम जाएगा एंड ऑल्सो अंडरगो डिस्टॉर्शन और डिटोरिएशन, कुछ पार्ट उसका गिर जाएगा. यहां तक समझ आ गया? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टोबैको मोजाइक वायरस के बाद नेक्स्ट जो वायरस है वो है साइनोफेज. साइनोफेज वर्ड का जो साइनो आया वो वर्ड है साइनोबैक्टीरिया से, और साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी. साइनोफेज. नेक्स्ट वायरस इज साइनोफेज. पहला क्वेश्चन, व्हाट इज साइनोफेज? जनरली some of the viruses are found which attack blue green algae or cyanobacteria. Generally some of the viruses are found which attack
ब्लू ग्रीन एल्गी, या जिसका दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया, and that is why these are called cyanophage. Next, Sofferman and Morris, दो साइंटिस्ट हैं, Sofferman and Morris 1963. Sofferman and Morris 1963, okay, reported 11 filamentous form of blue-green algae which were attacked by viruses. Reported 11 filamentous form of blue-green algae which were attacked by, reported 11 filamentous form of blue-green algae which were attacked by viruses. Okay, now this is also called LPP1. क्या बोला जाता है? LPP1, इसका फुल फॉर्म जान लो. L for लिनबिया, LYNBIA. P for प्लेक्टोनिमा, and another P for formedium, ठीक है. नाउ सॉफरमैन और मॉरिस ने ये रिपोर्ट किया कि 11 फिलामेंटस फॉर्म है ब्लू ग्रीन एल्गी का which are attacked by viruses and these viruses are called cyanophages. यहां तक समझ आ गया? अब देखो नेक्स्ट, these viruses are usually cyanophages, ये तो हम लोग जान गए. Cyanophages contain DNA as a जेनेटिक मटेरियल. साइनोफेजेस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? डीएनए. प्लस साइनोफेज रिजेंबल विथ बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरियोफेज से मिलता जुलता है किसमें? मॉर्फोलॉजी एंड बिहेवियर. साइनोफेज रिजेंबल with bacteriophage in morphology का मतलब external character and behavior means mode of infection. ठीक है, तो ये हो गया साइनोफेज का ओवरऑल डिटेल. यहां तक समझ आ गया? नेक्स्ट हम लोग थर्ड पढ़ेंगे माइकोफेजेस. ठीक है, माइकोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ फंजाई. यानी समझ आ गया, दोज वायरस विच इन्फेक्ट फंगस आर कॉल्ड माइकोफेजेस. सम फंजाई जैसे कि एगारिकस जिसको मशरूम बोलते हैं, पेनिसिलियम have also been found. Some fungi such as agaricus किसको बोलते हैं? मशरूम, पेनिसिलियम etc. have also been found to get
infected, been also been found to get infected by viruses. ठीक है? These are isomeric in shape and contain, these are isodiametric means equal shape and size, isodiametric in shape and contain, क्या कंटेन करता है माइक्रोफेज? डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ये हो गया माइक्रोफेजेस का डिटेल। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? अब क्वेश्चन है व्हाट आर फाइकोफेजेस। तो फाइकोलॉजी किसको बोलते हैं? फाइकोलॉजी का ही दूसरा नाम है एल्गोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी। दोज वायरस विच इन्फेक्ट एल्गी आर कॉल्ड फाइकोफेजेस। फाइकोफेजेस, फाइकोफेजेस में क्या होगा? दोज वायरस which infects algae are called phycophages. ओके, तो ये कंप्लीट हो गया फाइकोफेजेस। माइक्रोफेजेस जो फंजाई को इन्फेक्ट कर रहा है वायरस, फाइकोफेजेस जो एल्गी को इन्फेक्ट कर रहा है। यहां तक क्लियर हो गया? अब हम लोग पढ़ेंगे HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरसेस, HIV। इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो deficiency viruses. HIV is also known as human immunodeficiency viruses. It is also called AIDS virus. It is also called क्या? AIDS virus. AIDS virus. Next, it is a retrovirus. It is a retrovirus. अब यहां पे सवाल है कि इसको रिट्रोवायरस क्यों कहा गया? As it contain a single stranded RNA with a reverse transcriptase enzyme. ठीक है, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कंटेन करता है और उसके साथ साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कंटेन करता है। उसके बाद लिखेंगे बाय द help of reverse transcriptase, they means HIV synthesize या retrovirus group synthesize DNA from RNA. Normally we know that DNA से RNA बनता है and the process is called transcription. The synthesis of mRNA from DNA is called transcription. But here the case is reverse. From RNA DNA is synthesized and so the process is called reverse transcriptase. ठीक है, reverse transcriptase. ये एक रिवॉल्यूशनरी चेंज लाया सेंट्रल डॉगमा ऑफ जेनेटिक्स में, क्योंकि सेंट्रल डॉगमा ऑफ जेनेटिक्स विच वॉज गिवन बाय FSC क्रिक, अकॉर्डिंग टू हिम फ्रॉम DNA a complementary copy of DNA is formed, that is called
replication. Then from that complementary copy of DNA, mRNA is formed, that is called transcription, and from mRNA protein is formed, that is called translation. So the synthesis of protein is unidirectional, DNA to RNA, RNA to protein. But as the retrovirus was discovered, it is clear that no, from RNA DNA can also be formed, and this process is called reverse transcriptase, and the enzyme which perform it is named reverse transcriptase enzyme. Okay, now it is 90 to 120 nanometer in diameter. Next, its surface is covered by a host derived membrane. Covered by a host derived membrane, ठीक है, which bears spikes. और ये स्पाइक्स किसका बना हुआ है? ग्लाइकोप्रोटीन. ग्लाइकोप्रोटीन, इसको ग्लाइकोप्रोटीन नॉब भी कहा जाता है, ठीक है. which have प्रोटीन कंपोनेंट. इसमें क्या होता है? प्रोटीन कंपोनेंट्स होता है. इस प्रोटीन कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है? known as peplomere, which have protein component, that is called peplomere. and ये जो प्रोटीन कंपोनेंट होता है स्पाइक्स में, ठीक है, जिसको ग्लाइकोप्रोटीन नॉब भी कहा जाता है, these are complementary to CD4 और T4. CD4 और T4 क्या है? complementary to CD4 or T4. What they are? Antigen receptor. They are antigen receptor present on the surface of helper T cell. Present on the surface of, किसके सरफेस में पाया जाता है? हेल्पर टी सेल. हेल्पर टी सेल, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, ठीक है, एक्सेट्रा. These all are white blood cells. ठीक है, तो ये हो गया इसके सरफेस का स्ट्रक्चर. अब बिलो दिस होस्ट डिराइव्ड मेम्ब्रेन, it is again covered by two layer of proteinaceous sheath. Inner to envelope. envelope के अंदर क्या होता है? viral wall is present. two layered viral wall is present. two layered viral wall पाया जाता है. ये किसका बनता है? मेड अप ऑफ प्रोटीन. मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है. और जो कोर होता है HIV का, इट कंटेन 2 सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोमिक RNA. ओके, यहां तक समझ आ गया HIV में? ठीक है, क्या लिखेंगे? द कोर कंटेन्स 2 सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोमिक RNA. सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोमिक RNA रिवर्स
ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, HIV कॉजेज एड्स, जिसके लिए कोई 100% क्योर नहीं है। एक ड्रग्स है जाइडोब्यूटीन, जिसको AZD कहा जाता है। इट इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ द पीपल बट कैन नॉट सेव द लाइफ ऑफ अ पेशेंट। नाउ सिंगल स्टैंडर्ड वायरस जो है, ये तो हो गया। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे होगा। जैसे पहले ये प्रोटीन कोट है, ठीक है। ये दोनों है RNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। ये दोनों है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। नेक्स्ट ये दोनों है प्रोटीन कोट। ओके, वेट अ मिनट। ठीक है, ये है डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, जो कि बेसिकली लिपिड से और प्रोटीन से बना है, जो कि होस्ट बॉडी से डिराइव्ड है। और ये है प्रोटीन नॉब या प्रोटीन स्पाइक्स। ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ HIV। नाउ कम टू द नेक्स्ट, viroids. Daniel discovered it. Okay, now the next is viroids. Dyneer and Raymer. Dyneer and Raymer, R-A-Y-M-E-R. Dyneer and Raymer in 1967 discovered a very simple, smallest infectious agent. Very simple, smallest infectious agent. Very simple, smallest infectious agents called viroids. ठीक है, वेरी सिंपल स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट, जिसको वायरॉइड्स कहा जाता है। नाउ viroid contain only low molecular weight RNA, means it contain only nucleic acid, there is no protein. It contain low molecular weight RNA, but
नो प्रोटीन। ठीक है। नेक्स्ट, वायरस क्या कॉज करता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज वायरस। वायरस causes potato spindle tuber disease वायरस। ठीक है, ये बीमारी कॉज करता है पीएसटीबी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। दूसरा क्या कॉज करता है? क्राइसेंथीमम स्टंट। क्राइसेंथीमम 1967। ओके, 71 देख लेना, लेकिन मॉडर्न अभी जो नया बुक है उसमें तो वही दिया 1967। ठीक है, अच्छा तुम देखो ठीक से, हम भी तुमको दिखा देंगे। ठीक है, जो अभी नया बुक आया है ना, ये तुम्हारा प्लांट पैथोलॉजी का, उसमें अब क्राइसेंथीमम स्टंट, उसके बाद वो क्या कॉज करता है? एवोकाडो सन ब्लीच। एवोकाडो सन, एवोकाडो सन ब्लॉच। ठीक है, एक्सेट्रा। ये सब डिजीज जो है वायरॉइड से होता है। ठीक है, अब वायरॉइड्स का सबसे बड़ा जो नेचर है वो है इट कॉजेस परसिस्टेंट इन्फेक्शन। ये लगातार इन्फेक्शन एक पर्टिकुलर प्लांट में कॉज करते रहता है। वायरॉइड्स कॉजेस परसिस्टेंट इन्फेक्शन। ठीक है, ये लगातार वायरॉइड्स का नेचर है। इसके बाद आएगा प्रायोन। प्रायोन इसका उल्टा, प्रायोन में प्रोटीन कोट होगा लेकिन जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट होगा। ठीक है, और इसको ब्रूस्टर ने डिस्कवर किया था। तो ये समझ आ गया? कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछो। वायरॉइड्स के बाद क्या होगा? प्रायोन्स। PRIONS। Brusner discovered it as a human disease causing agent. Brusner, PRUISNER. Brusner in 1982 discovered it as a human disease causing agents. As a human disease causing agents. Now Stanley B. Brusner discovered infection agents, discovered infectious agent. Okay, infectious agents. ठीक है, which were prions. अब क्या होगा? Prions are proteinaceous particles thought to cause a number of disease. Prions are proteinaceous particle. ठीक है, thought to cause a number of disease. ठीक है, thought to cause a number of disease including the slow virus, disease,
including the slow virus disease, therefore also called slow viruses. Therefore also called slow viruses. ठीक है, तो प्रोटीनेशियस पार्टिकल है लेकिन इसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं है, यानी इसका जो प्रोटीनेशियस पार्टिकल है जिसको हम कैप्सिड भी बोल सकते हैं, दैट इज द इन्फेक्शियस पार्ट एंड दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शियस एजेंट्स. नाउ दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली. ये तो क्लियर हो गया, बार बार बोलने का जरूरत नहीं है. ठीक है, समझ आया यहां तक? तो लिख देंगे कि जेनेटिक मटेरियल इज एब्सेंट. जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट. जेनेटिक मटेरियल प्रायंस में नहीं पाया जाता है. एक डिजीज है कुरु. ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिजीज है जो कि कैनाब्लास्टिक ट्राइब्स में पाया गया था, ग्वेना का. ठीक है, और इसलिए ये एक नर्वस डिजीज कॉज करता है जो ग्वेना में बहुत ही ज्यादा ट्राइब्स के पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय किया. कुरु, KURU. ओके, अ डिजीज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. A disease of central nervous system found in few caniblastic tribes of New Guinea. ठीक है, is caused by prion. Caused by prion. तो ये ह्यूमन डिजीज हुआ. तो कैसा डिसऑर्डर हो गया? नर्वस डिसऑर्डर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है, कहां पाया जाता है? कैनाब्लास्टिक ट्राइब्स ऑफ न्यू गिनी. ठीक है, और लास्ट जो अभी सिलेबस में जोड़ा गया है वो है इंटरफेरॉन. इंटरफेरॉन ऐसे तो एज अ इम्यून एक्टिविटी जोड़ा गया है. ठीक है, एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी में हम लोग को मिल जाएगा या इनेट एक्वायर्ड में, बट ये अलग से वायरस में भी जोड़ा गया है. इंटरफेरॉन्स, ये समझ आ गया? इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन ठीक है. व्हाट इज इंटरफेरॉन? फिंडले एंड मैकलम, GM Findlay, GM Findlay and McCallum. Okay, in 1937 इन्होंने क्या रिपोर्ट किया? रिपोर्टेड अ फेनोमेनन कॉल्ड वायरल इंटरफेरेंस. रिपोर्टेड अ फेनोमेनन कॉल्ड क्या? वायरल इंटरफेरेंस. वायरल इंटरफेरेंस. ठीक है, इन विच अ सेल इन्फेक्टेड विथ अ पर्टिकुलर वायरस बिकम रेसिस्टेंट टू एनी अदर टाइप ऑफ वायरल अटैक. दैट इज कॉल्ड वायरल इंटरफेरेंस. दैट इज a cell attacked by a particular virus become resistant to any other type of viral attack. मतलब एक बार हमारे किसी सेल को अगर कोई वायरस अटैक कर दिया तो उसके बाद वो सेल को कोई दूसरा वायरस अटैक नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट ऑलरेडी क्रिएट रेसिस्टेंस इन इट, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड वायरल इंटरफेरेंस. नेक्स्ट, एलेक लेसैक
एंड लिंडमैन, ठीक है, एलियट, क्या नाम साइंटिस्ट का नाम था? एलियट लिसैक, इसैक, ISSACS, एंड लिंडमैन 1957, ओके, गेव द टर्म इंटरफेरॉन, ये हम लोग इनेट एक्वायर्ड में पढ़ेंगे, गेव द टर्म इंटरफेरॉन, give the term interferon to the chemical substances, to the chemical substances, ठीक है, to the chemical substances responsible for viral interference। मतलब जब एक वायरस हमारे बॉडी में अटैक करता है तो हमारे बॉडी में एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है इंटरफेरॉन, और यही इंटरफेरॉन फ्यूचर में हमें किसी दूसरे वायरल अटैक से सेव करता है, बचाता है, ठीक है। तो लिखिए द केमिकल सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर वायरल इंटरफेरेंस। नाउ व्हाट आर इंटरफेरेंस? इंटरफेरॉन क्या है, अब ये हम लोग जानेंगे। इंटरफेरेंस तो समझ गए। पहला, interferon are produced by cells. Interferon are produced by cells in mammals, rodents, birds, etc. and provide resistance against virus, Second, interferon are proteinaceous molecule of low molecular weight which prevent viral multiplication. Interferon are proteinaceous molecule of low molecular weight, proteinaceous molecule of low molecular weight which prevent viral multiplication, जो किस चीज को रोकता है? वायरल मल्टीप्लिकेशन। पहला है इंटरफेरॉन हर उस सेल से प्रोड्यूस होता है, चाहे वो मैमल का हो, रोडेंट का हो या बर्ड का हो, जो वायरस से इन्फेक्शन होता है, और इन फ्यूचर यही इंटरफेरॉन रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट वायरल अटैक। सेकेंड, इंटरफेरॉन एक प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल है जो कि लो मॉलिक्यूलर वेट का है और ये वायरल मल्टीप्लिकेशन को रोकता है, ठीक है। सो दिस इज द डिटेल अबाउट इंटरफेरॉन। यहां तक क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन है तो पूछो। कोई डाउट है पूछो। प्रिया, ठीक है, तो आज यहीं तक, ठीक है। आज थोड़ा छोटा हो गया क्लास, नेक्स्ट डे हम फिर तुमको भेज देंगे।